Yes, we are going to start our topic. In last videos, we have discussed about three important terms. That is the chapter number 2, chemistry. That is matter around us pure. We are working on the chapter second, chemistry is matter around us pure. We are starting and we have done about the pure substance, impure substance. Then we done about the elements, compounds and mixtures. After then we have started the next second topic, that is named as our solutions, in which we have done what is pure solution, suspension and colloids. In our previous videos we have done till now. Now I am going for the very important topic related to exam point of view, that is the difference between pure solution, suspension and colloids. Pure solution, suspension and colloids. It is very important topic for the exam point of view. So how you find the difference? By making three lines. You can make three lines. First heading is pure solution. Second is suspension. And third one is colloids. I will give you again separate time to note down in your notebook. So firstly you have to understand, then you will write again. Okay? The very first point. What are true solutions? Those solutions whose particle size, is less than 1 nanometer. You know about nanometer? मैंने आपको पहले भी बताया था. What is nanometer? 1 nanometer is equal to 10 की power minus 9 meter. This is the very important unit conversion. 1 nanometer is equal to 10 की power minus 9 meter. That is very small particle. Okay. Second is the suspension. Suspension whose particle size is greater than 100 nanometer. Whose particle size is greater than 100 nanometer. And what are the colloids? Whose particle size is in between. Whose particle size is in between 1 nanometer to 100 nanometer. Colloids are the substances, colloids are the solutions whose particle size is in between 1 nanometer to 100 nanometer. So differentiating about the size, we are of three parts: pure solution, size less than 1 nanometer; suspension, size greater than 100 nanometer; and colloids, particle size in between 1 nanometer to 100 nanometer. This is the very first point and very important point. The second point, if particle size is very small, can you see? No. So second point is the particles can't be seen. The particles
can't be seen with naked eyes. Naked eyes means हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, कैसे भी नहीं देख सकते, विद माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते. Can't see particles, can't be seen. What are the suspension? Suspension के particles का size क्या है? ज्यादा है, काफी बड़ा है. So इसके पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं. तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? The particles of suspension can be seen easily. The particles of suspension can be seen easily. इनको बहुत easily हम देख सकते हैं. Next, what is about the third point? About the colloids. The colloid particles can't be seen with naked eyes. Directly हम उन्हें नहीं देख सकते, but we can see using microscope. So second point, the particles can be seen using microscope. माइक्रोस्कोप का पता है ना, जो स्मॉल सब्सटेंसेस, स्मॉल पार्टिकल्स को काफी बड़ा करके दिखा देता है. So the colloidal particles can be seen using microscope. Yes, my voice is audible to all, I think. If any student is having network problem, then don't think that you are not getting the video. We will send you video again. Okay, so try to listen. If a video is audible, video is seen, or audio is allowed, then you can try. Okay, next we are going for the third point. The true solutions are homogeneous in nature. They are homogeneous. You know about homogeneous? Homogeneous means uniform distribution. If uniform distribution is there, then it is known as the homogeneous. But suspensions are always heterogeneous. Suspension heterogeneous क्यों होते हैं? Because अगर हम किसी भी एक solution की बात करें, example sand solution, मैंने water लिया, इसमें कुछ sand के particles डाल दिए. अगर इसमें हमने कुछ सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए, तो ये सैंड के पार्टिकल्स हमें इजीली विजिबल है, दिख सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. इट इज हेट्रोजीनियस. सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. Suspensions are heterogeneous in nature. After that, we come into the colloids. This point is very important. Colloids appears to be homogeneous. Colloids appears to be homogeneous, but actually they are heterogeneous. But actually are heterogeneous. Again, true solution is homogeneous. Suspension are heterogeneous. Colloids appears to be homogeneous, but actually they are heterogeneous. So this is the difference between true solution, suspension and colloids. After that, we are coming for the fourth point. If the particles are very small, then they can pass through filter paper. Their particles pass through filter paper. Pass through filter paper. आप these particles भी लिख सकते हो, the particles of true solution लिख सकते हो, anything you can write, no problem. Their particles pass through filter paper. Filter paper से इन particles को pass कर दिया जाएगा. For example, मैंने salt solution की बात की बेटा.
साल्ट सॉल्यूशन में कौन कौन है, साल्ट है और वाटर है, तो वो किसका एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल रहेगा हमारे पास साल्ट वाटर। अब अगर मैं साल्ट वाटर को पास करवाऊं किससे, फिल्टर पेपर से, तो उसमें साल्ट और वाटर दोनों पास हो जाते हैं, दैट मीन्स द पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। लेकिन अगर मैंने अब सेकंड मैंने कौन सा लिया यहाँ पे आपको बताया एग्जांपल, सैंड सॉल्यूशन। कौन सा एग्जांपल बताया मैंने आपको, सैंड सॉल्यूशन। अगर मैंने सैंड सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर पे डाला तो सैंड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन हो जाएंगे, दैट मींस द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डोंट पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो क्या लिखेंगे, दीज पार्टिकल्स डोंट पास through filter paper. These particles don't pass through filter paper. The last about the colloids. The colloid particles का जो एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल रहता है इसका मिल्क ले सकते हैं, इंक ले सकते हैं, these are the examples of colloids. अब अगर हम इसे पास करना चाहें तो ऑर्डिनरी पेपर से तो पास हो जाते हैं, बट अगर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर लें तो उससे पास ये नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दे पास थ्रू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल सा, दे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर but can't pass through ultra filter papers, can't pass through ultra filter papers। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का एग्जांपल बेटा जी आपके घरों में आरओ यूज करते हो, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, जो वाटर को प्यूरिफाई करता है। अगर हम उसमें मिल्क डाल दें, इंक डाल दें, तो इसमें जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो तो सभी के सभी बाहर चले जाएंगे, उसको स्टॉप कर देगा, उसको पास नहीं होने देगा, बट जो वाटर पार्टिकल्स हैं ओनली वही पास हो जाएंगे। दैट मीन्स what I am saying, the particles of colloids pass through ordinary filter paper but can't pass through ultra filter papers. Yes, any doubt? Any doubt till now? फटाफट नोट करो, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एग्जांपल्स भी लिख लेना सबके, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन लिख लो, सस्पेंशन का एग्जांपल सैंड सॉल्यूशन लिख सकते हो, या फिर कोई भी हैवी पार्टिकल्स, प्लास्टिक पार्टिकल्स इन वाटर, यस बेटा नोट डाउन हो गया।
मैं फर्स्ट पॉइंट इरेज कर रहा हूं बेटा, जब तक फटाफट से नोट कीजिए, अदरवाइज आपको बेटा वीडियोस भी मिल जाएंगी या आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, ताकि जब आपको टाइम मिले आप इसे नोट डाउन कर लेना। गूगल एक बार ना जो वॉइस वाला है ये म्यूट करके ऑन कर, बोल बोल बोल। Beta, two students are saying me that the voice is not audible. Now you are audible or not? Okay, good. Yes, beta. The fifth point. The fifth point is the particles of pure solution are stable. The particles of pure solution are stable. That means these particles are stable. Next is about the suspension. The particles of suspension are unstable. The particles of suspension are unstable and the particles of colloids are stable. स्टेबल का मीनिंग ये है कि अगर हम उन्हें तीनों को देखें, एक साइड मैंने ट्रू सॉल्यूशन को रखा, एक साइड मैंने सस्पेंशन और एक साइड मैंने कोलॉइड्स को रखा, तो अगर मैं उन्हें देखता हूं तो देखने में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दैट मींस उनके पार्टिकल्स स्टेबल है। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स मुझे वैसे ही नहीं दिखेंगे, इसलिए वो स्टेबल है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स दिखेंगे और वो थोड़ी देर में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, आल्सो दे आर मूविंग, सो दे आर अनस्टेबल, बट colloids are stable. Colloids are stable because again हमें उनके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, the particles of colloids don't settle down. They don't settle down on standing. The particles of pure solution don't settle down on standing for some time. अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दिया, स्टैंड कर दिया बिना हिलाए, कुछ नहीं हिला रहा उसको, तो क्या होगा? क्या उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होंगे? नो, दैट मींस the particles of pure solution don't settle down on standing for some time. But suspension के particles क्या होंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सैंड के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? द पार्टिकल्स सेटल डाउन, द पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग for some time. And the particles of colloids, they also don't settle down. They don't settle down on standing. And the last and very important point of colloids, last and very important point, इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेपर में अगर 1 मार्क्स में डलेगा तो ये पॉइंट जरूर डलता है। 7 पॉइंट, दे डोंट शो टाइंडल इफेक्ट, दे डोंट शो
Tyndall effect. Suspensions show Tyndall effect. They show Tyndall effect. And the colloids also show Tyndall effect. Colloids also shows Tyndall effect. Now all the points are over. Note down fastly, and then we are going for the Tyndall effect. What is Tyndall effect? फिर हम उसको explain करेंगे. Do fast. बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू, टर्न ऑन योर कैमरा. अगर किसी ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया तो उसको ऑन करो. खुशी, उगांश सिंह, टर्न ऑन योर कैमरा. सुमित, उगांश सिंह, सुमित. Yes, very good. So that I can see you that you are working or not. बहुत टाइम हो गया आपसे मिले नहीं. One बेटा this name 6EF 1BFF7 and write your names because I am taking your attendance also. I am taking your attendance also, so you have to write your name only. Dikshita, turn on your camera. Yes beta, what is your name? Uh, 6EF. Yes beta, change your name. Okay. Yes, very good. I think all of you have done the difference. कर लिया बेटा सबने? I am unmuting you. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. Now you can unmute yourself. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर किसी ने कोई डाउट पूछना है तो. Okay then. We are going for the next very important topic, that is known as the Tyndall effect. Next heading is Tyndall effect. Anyone can tell me? कोई बता सकता है? बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा रखा है ये. What is Tyndall effect? Yes. The scattering of light by the colloidal particles. The scattering of light by the colloidal particles is called Tyndall effect.
कैसे लाइट स्कैटर होती है हम उसकी बात करते हैं। उसके लिए बेटा हमें चेक करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कोई भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लेते हैं। ये हमारा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन का मैं नाम दे देता हूं स्टार्च सॉल्यूशन। जब आप स्कूल स्टार्ट करोगे, स्कूल आना शुरू हो जाएंगे, तब हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे टाइमर इफेक्ट का। ये मेरे पास स्टार्च सॉल्यूशन है। मैंने इस पूरे स्टार्च सॉल्यूशन को एक डार्क रूम में रख दिया। जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन को डार्क रूम में रखूंगा और उसके बाद मैं सिर्फ यहां से एक बीम ऑफ लाइट पास करवाऊंगा, दैट इज द बीम ऑफ लाइट। जनरली क्या होना चाहिए, ये जो लाइट है ये पूरे पे फैल जाती है। जनरली होता यही है कि क्योंकि लाइट का मूवमेंट कैसे होती है, हमेशा ऐसे होती है, वो कंप्लीटली फैल जाती है। बट जैसे ही हमने इस कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात की, अगर हमने इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर लाइट फॉल की, तो व्हाट हैपेंस, जो इसका कंप्लीट पाथ है वो कंप्लीट पाथ विजिबल हो जाएगा। वो कंप्लीट पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। एंड यू कैन सी द लाइट ऑन अनदर साइड। आप सेम लाइट को अनदर साइड पर विजन कर सकते हो, आप देख सकते हो। दिस इज नॉन एज द टाइंडल इफेक्ट। दिस इज नॉन एज टाइंडल इफेक्ट। आपको मैंने बुक में भी दिखाया था लास्ट टाइम, मैंने आपको इमेज लगाई थी, दोबारा देख लीजिए। In the first part, light is not seeing. दिख रहा है सबको? In the first part, light is not seeing. That is about the true solution. And in the next part, second part, this वाले part में, अगर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर जो beam of light है, ये इसके अंदर से completely travel करते हुए next हमें visible हो जाएगा. So path of light visible हो जाए, this is known as the Tyndall effect. Okay, any doubt? This is about the Tyndall effect. थोड़ा सा और आगे करें. Okay. Next we are going for the very important term. अब थोड़ा सा numerical term आ चुका है हमारे यहाँ पर. कुछ numericals workout चलेंगे हम. That is about the concentration of a solution. अब तक हम solution के बारे में पढ़ चुके हैं. Now we are going for the concentration of solution. Now we are going for the next term named as concentration of solution. So what is its definition? क्या लिखेंगे? It is defined as the amount of solute present in given quantity of solution. In given quantity of solution. सुनिए बेटा इस बात को, एक एग्जांपल देता हूं. मैंने क्या कहा, सपोज हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं. आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, ड्यू, मिरिंडा, पेप्सी, यस और नो? ओके. जब हम बात करते हैं ड्यू की या मिरिंडा की, तो उसमें जब हम उसको ड्रिंक करते हैं तो हमें जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कम पता लगती है. लेकिन अगर हम उसकी जगह पेप्सी को चेक करते हैं, पेप्सी जब पी के देखते हैं, देन वी फील वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यस, दिस इज द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन. या फिर एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपने घर में एक गिलास वाटर में 1 स्पून शुगर डाला, डिसॉल्व किया एंड ड्रिंक कर लिया. और आपने थोड़ा सा हनी ड्रिंक किया डायरेक्ट, या फिर जो रूह अफ़ज़ा यूज करते हो वो रूह अफ़ज़ा डायरेक्ट ड्रिंक कर लिया. दोनों में से कौन ज्यादा स्वीट है? दैट इज रूह अफ़ज़ा या हनी? हनी और रूह अफ़ज़ा इज मोर स्वीट. इसका मतलब
हमें ये पता लगा दैट इन रूह अफ़ज़ा और हनी देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट देन शुगर वाटर या रसना आप ड्रिंक करते हो. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंसंट्रेशन. So what is concentration? It is defined as the amount of solute present in given quantity of solution. चेक करके बताना बेटा. मैंने आपको दो सॉल्यूशन दिए, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B. मैंने दोनों में सेम वाटर लिया, कितना 100 ml. मैंने फर्स्ट ए बीकर में 10 ग्राम शुगर ऐड की. फर्स्ट बीकर में कितने ग्राम शुगर ऐड की? 10 ग्राम. और सेकंड बीकर में ऐड की 5 ग्राम शुगर. बेटा बता सकते हो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? यू कैन सेंड मैसेज इन चैट. शुगर किसमें ज्यादा है, ए में, बी में? यस, वेरी गुड. इन ए सॉल्यूशन. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ए सॉल्यूशन में ज्यादा है. अब ये कैसे पता चला? देखो बेटा, ये जो शुगर है इसको हम क्या नाम देंगे? सॉल्यूट. इसको हम क्या नाम देंगे? सॉल्यूट. और जो 100 ml वाटर है वो मेरा क्या है? सॉल्वेंट. वो मेरा क्या है? सॉल्वेंट. क्लियर? सेम यहां पर भी शुगर क्या है? सॉल्यूट. और वाटर क्या है? सॉल्वेंट. तो क्योंकि एक जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमेशा किससे मिलके बनता है? सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इन दोनों को मिलाने से बनता है मेरा सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब ये सॉल्यूट है 10 ग्राम, सॉल्वेंट है 100 ग्राम. टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा? 10 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 110 ग्राम. ओके, ये अभी हम करना सीखेंगे. तो मैंने आपको क्या बता दिया, हमें इसमें क्या पता लगाना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं. मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला रहेगा, मैथमेटिकली concentration is the amount of solute in gram. solute को किसमें लेंगे हम? ग्राम में. to the mass of solution. to the mass of solution in gram. क्लियर? तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट किसमें लेंगे बेटा हम? इन ग्राम. डिवाइडेड बाय मास ऑफ solution divided by mass of solution in gram. अब जनरली हम ना किसी भी चीज को परसेंटेज में लेते हैं. अगर हम इसे परसेंटेज में लेना चाहें तो एक छोटा सा और काम करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो नाउ कंप्लीट कंसंट्रेशन बन गई. व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by mass of solution in gram multiplied by 100. Clear? This is the formula. अब हम पूरे के पूरे सॉल्यूशन की बात करें
तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है दैट मास ऑफ सॉल्यूशन, mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent, mass of solute plus mass of solvent. Note down these two formulas. First formula very important, note down करो. Second formula इसको भी note down करो. ऊपर डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हो दोनों, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आपसे न्यूमेरिकल भी करवा के देखूंगा आज।